हाँ जी, डाउट है ग्रुप में भेजिए, देखते हैं. Yes, Sitaram, you send this group in group question in group, okay, so that others can see. Yeah. Okay, see your doubt. What is the doubt in that? So did you try solving it? Yes, sir, but I am stuck with that x intersection x plus y less than. That thing I am stuck with. Why? Do you know definition of Ex? What is definition of this? Integral x into f dx. Yes. Whatever the limit is. You know expectation of definition of this? Yes, integral x into f of x given by dx. Okay. Integral x into F of x given by dx. the x given y you can write. क्या हो रहा है भाई? So okay, this you know. So expectation of x given y is x time f of x given y. This is just okay. What is the expect? This you know. Okay, fine. So now here is this you want e of x given x plus y more than 1. So what you need to do? So the definition here is in the denominator you will have x plus y more than 1 and in the numerator it is continuous. So x time f of x comma y dy dx. Why? Because here is a xy function both. So this is a function of xy, you assume it is a function of x and y both, and this into joint PDF. Now what you have to do? The support of x is 0 to infinity, but support of x and y are 0 to infinity, but this is the restriction. So no problem, you integrate over this region. So what is the support here? First quadrant, x plus y more than 1. Which region is this? Upper region. Yes, so integrate over this region. So you have to break into two parts, right? Whatever way you do. So you have to integrate it. So, because here you take the limit here. So if you take like this, the limit of y is what? This curve is x plus y equal to 1. So what is the limit of y here? Y is from 1 to infinity. Yes, so you just have to integrate over this. So the double integration, this, and you have to just integrate over the curve x plus y less more than 1. That is the thing. And now if I write it further, so if I write it further, it will be 2 integral. So denominator you can calculate, right? Yes. Denominator, similar way you calculate denominator. So just here is x, you write joint PDF dy. So two parts you have to do. You have to write in two parts. One over this region and other over this region. So what is the limit of y in this region? Y is equal to what? 1 minus x. Yes. So over this y is equal to 1 minus x to infinity, and x, what is the value of x here? X will take what value? 1.3. No, 0 to 1. In this region, I am integrating in this region, the first half. So 0 to 1.
So 0 to 1, and upon this you calculate this probability. Plus this is a half part. Again you have to do the similar thing. So let's better do this. So this is the half part, and the full if you solve, plus double integration x f of xy x given y x comma y dy dx. So what is the limit now in this region? What is the limit of y? 0 to infinity. Yes, so it is 0 to infinity. And what is x in this region? So X is 1 1 to infinity. 1 to infinity. 1 to infinity. You integrate this and you integrate. Same thing you have to do here also. When you're finding probability, so here you can do one thing. You may write 1 minus probability x plus y less than equal to 1. That will also work. Here in denominator, this can be written like this. But this integral you have to do into part. Now, can you integrate this? So, do you know how to integrate this, or should I solve? हाँ जी सीतारमन, solve कर पाओगे या मैं करूँ? Sir, I can substitute for the joint PDF and just solve it. Yes, just integrate it and see what answer comes here. That's all. Sir, one more doubt is there. Yes. In the book it is given that if x and y are two independent exponential distributions, then x given x plus y will follow uniform solution. Uniform 0 1. So that won't be applicable. No. 1 minute. It says actually one is x upon x plus y. That will be uniform 0 1 when x is exponential lambda. Okay. So if xy are IID exponential lambda, this works. And the second one is, I think, what is this? Exponential. With some constant, with beta or something. Okay, let's say lambda. So you want to say x upon x plus y is equal to what? Okay, sir, it's my mistake. So it was x divided by x plus y. Right? No. So they are different thing. Allow, it is also a theorem. I think this holds for it is 1. So if it is 1, then it also comes uniform 0 1. I think it is also a theorem. But here it is 1 actually. Then maybe. It's not conditional distribution, it's a ratio. Like Ratio, yeah, it is a ratio actually, yes. In the book it is a slash, so I got it like conditional distribution. Yeah, there is slash of two type. One is this slash. This slash means ratio, and this slash means given. Okay. And this slash means difference. This is division, this is given, and this is minus. Okay. So sometime you will see in question paper notation like this. This is upon, this is given, and this is minus. If this slash is used. Yeah. Okay, और लोगों का डाउट है देख लेते हैं, चलो. हाँ जी बताइए, जिनका डाउट, क्या डाउट है इसमें? जो ग्रुप पे भेजे हैं. सर ये क्वेश्चन नंबर 33 में सर ये मैं पूछ रही थी कि इसमें जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो होता है वो अनबायस्ड होता है. अनबायस्ड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं, जैम के सिलेबस में. तो अनबायस्ड कहाँ पूछा है इसमें? नहीं सर ये क्वेश्चन नंबर 33 में मतलब अगर टेस्ट जो हमारा अनबायस्ड होता है तो ये होता है ना कि पावर ऑफ द टेस्ट रिटर्न हो जाता है हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या साइज से, तो उसके हेल्प से हम ए ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे. अच्छा, ये बीटा थीटा एंड बीटा 0 टेस्ट अनबायस्ड होता है तो नहीं उसका यहाँ यूज करने की कोई जरूरत नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, ठीक है ना. अनबायस्ड टेस्ट की जरूरत ही नहीं. यू जस्ट अब पावर फंक्शन लिखो और उसमें एक बार थीटा की जगह 0 लिख दो. ये सब वो समझ आ गया, बट सर मैं ऐसे ही YouTube पे देख रही थी तो फिर एक लोगों ने बताया हुआ था कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अनबायस्ड होता है, तो उस कारण से हमारी ये पावर जो होता है वो साइज से ग्रेटर हो जाएगा. देखो बहुत सारे और लॉजिक लोग देते हैं,
लेकिन ये लॉजिक जैम में आप लगाओगे, अनबायस्ड टेस्ट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, वो गेट में भी रेयरली कोई क्वेश्चन आता है उस पे। अनबायस्ड टेस्ट का एक अलग बता सकते हो उसे। अब यहाँ साइज कौन सा है, आपको क्या लग रहा है? बीटा जीरो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन साइज है इसमें? बीटा थीटा और बीटा जीरो में कौन सा साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर बीटा जीरो को उन्होंने साइज बताया कैसे? था, बीटा थीटा को पावर। कैसे साइज है? साइज का डेफिनेशन क्या है? साइज तो अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में। यस सर। वो तो गलत है ना, कोई कुछ भी बता रहा है इसका मतलब सही थोड़ी है। मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ लिख के बताया था चारों ऑप्शन के, मतलब दो ऑप्शन के। हाँ सर, वो समझ गई। ये अनबायस्ड टेस्ट का कोई जरूरत नहीं है यूज करने का। ये यहाँ पे ये गेट रूट में आते हैं क्वेश्चन, गेट नेट में, ये जैम में ये सब अनबायस्ड टेस्ट मत यूज करो। वो सब नहीं है। 40 वाले में था कि सर जो हमारा मतलब ये फाइंड करना है कि वो क्रैमर और लोअर बाउंड अटेन कर रहा है नहीं, तो सर हम एमवीवी फाइंड करने के लिए हम ये डेल अपॉन डेल थीटा से लॉग थीटा को डेरिवेट करते हैं, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट पे। तो जो हमारा फॉर्म बनता है कि हमारा एक अनबायस्ड एस्टिमेट हो गया और माइनस हमारा जो एस्टिमेट होता है मतलब थीटा हुआ, तो वो हो जाता है, और अपॉन में उसका फंक्शन होना चाहिए, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए। तो उसके हेल्प से भी कर सकते हैं सर, अगर उस फॉर्म का बन रहा है हमारा। नहीं, आपने जो मुझे सॉल्यूशन भेजे थे तो उसमें हाँ सर। यहाँ भी आप अनबायस्ड टेस्ट कुछ कह रहे थे, और यहाँ टेस्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एस्टिमेशन का है, तो टेस्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं इसमें। यहाँ आपको जो इस क्वेश्चन दो अप्रोच से मैंने क्लास में बताए होंगे। एक तो है कि 1/थीटा का आप यूएम यू ही निकाल लो। हाँ। अब देखो क्लास में जब यस, अगर वो क्रैमर और लोअर बाउंड वैरिएंस वो अटेन कर रहा है तो फिर वो हो जाएगा, अगर उससे नहीं आ रहा तो। हाँ, जैसे मान लो अगर ऐसा है कि T1 इज UMVUE, तो T1 का वेरिएंस मिनिमम होगा। अब अगर वेरिएंस ऑफ T1 अगर स्ट्रिक्टली मोर देन है क्रैमर राव लोअर बाउंड से, मान लीजिए फॉर 1/थीटा, तो इसका मतलब है then there does not exist any unbiased estimator of 1/theta which attains या whose variance attains Cramer or lower bound। यस सर, ये समझी सर। आपने एक और बताया हुआ था जी। उसमें के थीटा करके, तो सर के थीटा की वैल्यू जो है अगर मतलब हम -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले कुछ भी ले सकते हैं। के थीटा सुटेबल अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं एनी फंक्शन, ताकि वो फ्री हो। एक थ्योरम मैं यूज किया था वीकर-वेत्की वाला, है ना, वो बताया होगा। हाँ, वो समझ गई थी सर। तो वही के थीटा मतलब 1/थीटा हो रहा था, और जब लॉग वो डेल थीटा कर किए तो 1/थीटा प्लस लॉग एक्स आ रहा था। तो सर के थीटा की वैल्यू -1 ले सकते हैं ना, तुम्हारा वो हाँ, लॉग एक्स कुछ भी -1 थीटा कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, जो यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं, एक तो बहुत सारे लोग गलत पढ़ा रहे हैं, पहली बार बता दूं मैं। देखो एक चीज क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग सबकी उतनी अच्छी नहीं हो सकती। थ्योरी कोई भी पढ़ा देगा आपको। थ्योरी क्या है, कोई किताब लेके देख देख के पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा देगा कोई भी। या थ्योरी तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आप देखो जो आपके सिलेबस की थ्योरी है लाखों लोग पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इनफैक्ट एनपीटीईएल पे आप जाओगे, एनपीटीईएल आईआईटी का ऑफिशियल पोर्टल है, उसमें प्रोफेसर लोग भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके एंट्रेंस के लिए कितना रिलेवेंट है। तो मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोचिंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर करना। जो लोग क्वेश्चंस यूट्यूब पे करवा रहे हैं आप देखेंगे, कुछ ही लोग बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत कम, रेयरली हैं यूट्यूब पे। कोई कुछ भी पढ़ा रहा है मतलब ऐसे ही, और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, मतलब ऑथेंटिक बहुत कम है ना। ये चीजें हैं कि जिन लोगों ने उस लेवल का क्वालिफिकेशन है, पहली बात है जो खुद जैम क्वालिफाई किया और ठीक ठाक नॉलेज होगा उसको। उसमें भी जिन्होंने अगर एमएससी स्टैट्स में या पीएचडी स्टैट्स में किया है तो उनको ठीक ठाक नॉलेज होगा। ऐसे कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है ना, क्योंकि स्टैट्स में क्या स्कोप आजकल बढ़ रहे हैं, तो सब लोग मैथ वाले छोड़ छोड़ के स्टैट्स में घुस रहे हैं। उनको लगता है स्टैट्स पढ़ा देंगे, तो उनको खुद ही स्टैट्स नहीं आ रहा, वो स्टैट्स पढ़ा रहे लोग। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो उससे दिक्कत क्या है, उससे आपका टाइम किल होगा, आप बहुत ज्यादा सीख नहीं पाओगे। और क्वेश्चंस आप उनसे पूछ लो, तो उनको पीवाईक्यू के क्वेश्चन पूछ लो, नहीं आएगा रेयरली, या जो पढ़ा रहे हो कहीं गलत समझ मिल रहा होगा, मतलब पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं ना, ये बहुत एक हाई लेवल के क्वेश्चन है जो आप डाउट पूछ रहे हैं, ये सब इतने आसान नहीं है, तो ये सब लोग सॉल्व नहीं कर सकते इसको। और दूसरी चीज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो थ्योरेटिकल में थोड़े से ज्यादा, एक होता है कैलकुलस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सब फार्मूला बेस्ड तो है नहीं दोनों,
तो इसमें थोड़े से थिंकिंग एबिलिटी चाहिए। तो यूट्यूब पर कोई अनबायस्ड टेस्ट वेस्ट पढ़ा रहा है वो सब गलत पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अनबायस्ड टेस्ट का यहाँ कोई जैम के सिलेबस में अनबायस्ड टेस्ट है भी नहीं, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ है। अनबायस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट वो भी एडवांस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो, जो गेट और गेट में भी एक दो क्वेश्चन, अभी तक शायद एक क्वेश्चन अनबायस्ड टेस्ट पे आया गेट में, रेयरली, मुझे वो भी याद नहीं है शायद। ये है नेट रूट में आते हैं जो हायर लेवल की टॉपिक है वो, तो वो सब क्यों यूज करना आपको जैम लेवल, जैम के आप लोग भी बहुत बच्चे हो ना, अभी स्टैट्स सीखना शुरू किया आप लोगों ने, तो उसमें आप उस तरह कॉन्सेप्ट यूज करोगे उस लेवल का एग्जाम में, वो थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आप जानो, आपके जो सिलेबस हैं उसी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ कुछ, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ लोगों का, तो उसमें क्या है कि लोग कोई प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन यूज कर रहा है, कोई मतलब ऐसी ऐसी चीजें यूज कर रहा है पीवाई को सॉल्व करने में जो सिलेबस में ही नहीं है। तो हमसे तो एग्जाम में आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर, कि जो सिलेबस प्री स्पेसिफाइड है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमें। हम बाहर एक क्वेश्चन करने के मैं मानता हूँ कि 1000 तरीके हो सकते हैं, सिलेबस से भी हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस से बहुत सारे वे होंगे जिससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को वो सीखना है जो आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन बाहर कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होंगे, लोग कराते हैं, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमारा जो सिलेबस है उससे कैसे सॉल्व हो जाए, तो ये कोशिश करना है आपको, है ना, इस तरह से है। बट मैंने प्रॉब्लम सॉल्व फोकस करो, ठीक है, यूट्यूब पे, लेकिन ज्यादा टाइम उस पर बहुत डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब पे, आप जो बहुत सिलेक्टेड चीजें देखो। पहले का देखा हुआ था तो फिर हाँ। वो करते टाइम दिमाग में आ गया। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा मैं नहीं मानता मैं सबसे दुनिया में सबसे क्वालिफाइड मैं ही हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यूट्यूब पे भी हैं, बाकी जगह भी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, देख सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड चीजें देखिए जिससे आपको लगे कि फायदा हो, वरना टाइम आजकल दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए ना, फोन और ये लैपटॉप के चक्कर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट वहां दिक्कत आती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता, फोन हम उठाते हैं किसी और काम से, 2 घंटे बाद फोन रखते हैं, फिर 2 मिनट बाद जिस काम से फोन उठाए तो काम तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा अक्सर होता है ये सभी समय में। लैपटॉप शुरू किए टेस्ट देने के लिए, वहाँ यूट्यूब वीडियो देखने लगे हम, तो ऐसा हो जाता है। तो इस सबसे बचना है आपको, कि एक जब फोन या लैपटॉप उठा रहे तो आपके पास इंटेंशन हो कि क्यों आप फोन उठा रहे हैं, मतलब पहले इंटेंशन क्लियर कर लो। जैसे कोई ऐप में टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट देने के लिए उठाओ, अब क्या व्हाट्सएप पे 4 मैसेज आ गए, वहाँ हम बात करते रहे, भूल गए कि टेस्ट देना था, या लैपटॉप में आप खोले कोई नोटिफिकेशन आ गया यूट्यूब का, वहाँ देखने लगे, तो ये सब बहुत डिस्ट्रैक्शन, इससे आपको बचना है। मतलब जब फोन और लैपटॉप आप उठा रहे हो तो इंटेंशन क्लियर रखो जी। मेरा क्वेश्चंस है। हाँ आते हैं, तो आपके ये 2 क्वेश्चन थे, तो ये जैसे मैंने कराया उस तरीके से कर लीजिए, काफी है, सिलेबस बेस्ड यही है, ठीक है। अनबायस्ड टेस्ट का यूज नहीं करना है। हाँ जी, तो क्या डाउट है सर बताइए। सर ये है सर, इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालूं? तो मुझे बताइए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती क्या है, डेफिनेशन। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ एन आइगन वैल्यू। यस, तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़िए, क्या फाइंड करना है, क्या पूछा गया है आपसे, क्या फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। जी, तो क्या आप एक आइगन वैल्यू निकाल पा रहे हैं। क्या आपने एक ही आइगन वैल्यू फाइंड की है, आप ट्राई किए आइगन वैल्यू फाइंड करने की। पहले क्या बोला इसने कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालो, फिर उस आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिसिटी बताओ, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो पहले आइगन वैल्यू तो निकाल लो, ट्राई करो। आप फिर ट्राई नहीं करता, क्वेश्चन पढ़ो ना 4 बार, क्या पूछ रहा है ज्योमेट्रिक, अब सीधा सीधा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी नहीं देख के, उसके लिए पहले मुझे आइगन वैल्यू निकालना होगा, फिर सेलेक्ट करना होगा आइगन वैल्यू में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है, अब उस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना होगा, अब उस आइगन वेक्टर में फिर मैं काउंट करना है कि इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स क्या हैं, ये चीज है। सर और एक क्वेश्चन है सर, ग्रुप में दिया, उसको ट्राई करो, पहले इसको ट्राई करो फिर सॉल्व करके आओ। कौन सा है। 54। 54 में क्या है बताइए, ज्योमेट्रिक दे रखा है, तो आपने वो थ्योरम नहीं पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिक वाला। हाँ सर वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर से कैसे अप्लाई करूंगी, मतलब अप्लाई करना नहीं आता सर। अरे मैडम क्या यूनिफॉर्म होता है, अब देखो x1 x2 हमने एक क्लास में सब पढ़ाए, तभी बता रहा था मैं। एक तो जैसे आपको जब क्लास में बुक से भी पढ़ सकते हो, ये विकर वैद्य में थ्योरम है,
मैं बता देता हूँ पेज नंबर, लिख लो, अब मैं क्लास में भी करा देता हूँ, वहां भी देखो। बुक में कई बार चीजें बहुत डिटेल में रहती हैं, तो ये थ्योरम बुक में भी है ऑलरेडी, और इस पे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं। गुप्तापुर में भी होगा, क्योंकि गुप्तापुर बहुत ज्यादा मुझे उस टाइप का लगता है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो मैं ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। तो बहुत सारी भर रखी है ना चीजें। गुप्ता कपूर एक्चुअली मतलब ऑनर्स के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो प्रोफेसर डीयू में थे ना, तो वो डीयू के प्रोफेसर थे, जो हिंदू कॉलेज में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था आई थिंक, तो उन्होंने उसके लिए ही लिखा हुआ, बट उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है पूरा। वहाँ पर सिर्फ ऑनर्स मतलब ऑनर्स का कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसका बहुत फायदा है। जी, कहाँ गया, ज्योमेट्रिक तो डिस्क्रीट है ना। अच्छा, तो ज्योमेट्रिक देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ थ्योरम, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 181, बुक का नाम है वीके रोहतगी वाली जो बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, AKMD सलाह वाली, ये ऑथर है, इसकी बुक देखो, प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड और स्टैटिस्टिक्स। ये बुक है मेरे पास। हाँ, इसमें देखो थ्योरम नंबर, पेज नंबर 181 पे थ्योरम नंबर 3 चेक करो। 3 तो थोड़ा जनरलाइज केस है, नेगेटिव बाइनोमियल का है, इसका रेस्ट्रिक्शन है थ्योरम नंबर 4। 3 तो नेगेटिव बाइनोमियल के लिए है, क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक है ना, तो 4 उसका स्पेशल केस ज्योमेट्रिक में है। ये थ्योरम नंबर 4 है, चटर्जी ने थ्योरम दिया है ना, मतलब रेफरेंस भी दे रखा है इन्होंने, किसने प्रूफ किया है, तो ये यूज कीजिए, देखिए। और इसके ऊपर है ना, दोनों हैं। देखो अब मैं बता देता हूँ, ये थ्योरम नंबर 4 जाके देखो पेज नंबर 181 पे। इसमें तो रिवीजन जरूरी, रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में बहुत क्लियर नहीं, वो क्लियर होती रहेंगी। सो रिवीजन सिलेबस का, रिवीजन PYQ का, रिवीजन वो मुश्किल क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम आपको डिफिकल्ट लगे थे, तो उसको कुछ टाइम बाद फिर से सॉल्व करके देख लो कि क्या वो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी वो अभी भी प्रॉब्लम है या सॉल्व हो गई। देखिए, तो x1 x2 R ज्योमेट्रिक P। अब ज्योमेट्रिक में दो तरह का PMF है, बताइए। एक में सपोर्ट क्या होता है, दो केस है ना, एक में 0 से, एक में 1 से। हाँ, एक में सपोर्ट स्टार्ट होगा 0 से, तो सपोर्ट 1 होगा, या अगर दो PMF लिखूं मैं, तो दोनों के लिए अलग अलग केस है। तो अगर मान लो दिया हुआ है कि 1 से है जी, तो आपका PMF दे रखा है 1 से है, अब वही एग्जाम में 0 से दे देगा तो फिर आप फंस जाओगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ x की वैल्यू 1 2 डॉट 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 है, और ये थ्योरम मैंने पहले भी कराए हैं, ये क्लास में क्या हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं जब करा रहा था मैं। हाँ सर, मैं उस दिन से मतलब बीमार थी थोड़ा सा। तो वीडियो नहीं देख सकते आप, बीमार थी तो। सर वीडियो देखते देखते सर मतलब टाइम इतना चला जाता है कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो आपका टाइम मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा काम टाइम कम इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं 4 बार एक ही क्वेश्चन कराऊं क्लास में। तो ऐसा नहीं है मतलब। तो जाकर वीडियो देखो ना, जिस ईयर का क्वेश्चन है उस ईयर के वीडियो खोलो, बैच 6 के गेट का क्वेश्चन है ये, तो बैच 6 का प्लेलिस्ट खोलो, उस ईयर के पेपर में जाओ, स्किप करो, देखो क्वेश्चन। मैं तो ऑर्डर में कराता हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि रैंडम करा रहा हूँ, क्लास में ऑर्डर में कराता हूँ, देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, उसके हिसाब से मिल जाएगा सोल्यूशन, तो आप वहां देखो फिर सीखो। ये है ना, बार बार परेशान करने का जो देखिए क्वेश्चन, ये मैं क्लास में कराया हूँ, बाकी लोग इसलिए रिप्लाई कर पा रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने किया है सॉल्व, तो आप इसको सॉल्व करो ना, ये है। अब ये थोड़ी आप जिस दिन अब्सेंट थे पूरी क्लास में दोबारा लूंगा। ठीक है, तो ये जब यहाँ 1 से स्टार्ट है तो 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा वैल्यू, जब 1 रखेंगे तो t-1 तक, और ये सबको पता है, ये केस है, लगाओ ये थ्योरम। अब क्या दिक्कत है बताइए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो x1 इज इक्वल टू कुछ भी है, लेट्स से स्मॉल x, गिवन x1 प्लस x2 बराबर t, तो इस डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का PMF क्या होगा यहाँ पे, तो लगाओ इसको, क्या दिक्कत है, क्या है वहां पे, हमारे क्वेश्चन में t क्या दे रखा है, हाँ तो क्या आंसर होगा, 1/3 हो गया।
अब ये आप वहां भी वीडियो में देख लेते तो वहां भी मैंने ये थ्योरम लिखा हुआ है, वहां भी सेम एक्सप्लेन किया हुआ है। सर ये जीरो वाले केस से नहीं है ना, जीरो वाले केस के लिए नहीं है ना? जी जी जी, जीरो वाले के लिए क्या होगा? सिर्फ वन वाले। अगर ज्योमेट्रिक जीरो वाला है, मान लो इसमें यही थे पीएमएफ ये होता तो क्या होता? 1/t+1 है ना, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो उस केस में x1/x1 प्लस x2 बराबर t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 1 नहीं 0 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 0 तो हो ही सकता है, 1 अप टू 0 होगा तो t तक जाएगा, t जाएगा ना, तो 0 रखेंगे तो t तक जाएगा। यस, तो मतलब प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x गिवन x1 प्लस x2 बराबर t, सो दिस इज 1/t आ जाएगा। t या t+1, सॉरी t+1, t+1 यहाँ t+1, क्योंकि टोटल कितने पॉइंट है इसमें, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट था जस्ट t-1, इसलिए 1 नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं t+1, तो इसलिए 1/t+1 जहाँ x की वैल्यू होगी 0 1 अप टू t। तो ये थ्योरम, इसको अप्लाई कीजिए, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं क्या थ्योरम है। जनरलाइज होगा ना सर, b माइनस के +1 जनरलाइज होता है जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म पर, जैसे x की वैल्यू a से स्टार्ट हो रही हो और तो वो 1 के b माइनस के a प्लस जी, नंबर ऑफ पॉइंट काउंट कर लो कितने हैं, 1 नंबर ऑफ पॉइंट इन द सपोर्ट, ये चीज है कितने, बस ये काउंट कर लो कितने हैं, तो वो देखना है। जैसे यहाँ पे t+1 पॉइंट्स हैं टोटल, हमें इस टाइप का दे रखा हो तो हम काउंट तो कर नहीं पाएंगे उसमें। किस टाइप का, 1 हैं कहाँ काउंट नहीं कर पाएंगे? जैसे डिस्क्रीट दे रखा है और हमें 1 2 3 नहीं दे रखा, a से स्टार्ट किया है इस करके, तो या तो फिर एल टर्म्स निकालेंगे वहां से टोटल तो निकाल लेंगे ना, ए से दे रखा था कहीं तक तो होगा, ए से लेके कहाँ तक कुछ तो होगा, हाँ हाँ, जैसे कि p+1 या तो उसके हिसाब से देख लेंगे। हाँ, वो जैसे भी है काउंट वैसे कर लेंगे। काउंट कैसे करते हैं भाई, 100 से लेके 200 तक कितने नंबर हैं, तो 200 - 99 ये है, तो उतने नंबर आ जाएंगे, उसके पीछे वाला घटा दो। ठीक है जी, चलिए आगे मॉक टेस्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जिनको भी जैम या गेट के पीवाईक्यू में डाउट है, बैच 3 में जैम का पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है, बैच 6 में गेट का, ठीक है ना, और वहां देखो, वहां जब कन्विंस नहीं हो तो फिर मुझसे डिस्कस करो, है ना, क्योंकि सॉल्व हम कर ही चुके हैं। अब बच्चा क्या लाइव अटेंड करता नहीं है, वही डाउट 50 बार आएगा, एक ही डाउट, क्योंकि वही डाउट हर बच्चे का आएगा। अब हर बच्चा क्या है, एक दिन पूछेगा तो वही क्वेश्चन पूरे साल कराता रह जाऊंगा, तो आप पहले वहां देखो, अगर नहीं कन्विंस्ड हो। अब जो लाइव रेगुलर करता रहा उनको सब पता है कि मैंने क्या क्या पढ़ाए हैं। अब वो बच्चा है जो ओकेजनली ज्वाइन करता है महीने में एक दिन लाइव, तो उसको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना, आप पूरी चीज दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, ये चीज है, ठीक है। बाकी देखो, अभी हम लोग मॉक टेस्ट का वो डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, ओके, चलो, तो अच्छा दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, ओके।